Hello students, this is Sanjay Purohit. Would like to see R.S. Agarwal, chapter 2, MCQ. Last time when we have seen up to 17 or 16, I think 16. Now let's start with 17. One of the zeros of 3x square plus 8x plus k be the reciprocal. 1 0 is reciprocal of other, then k equal to dash. Last day I forgot to send PDF, but today I will sure send the PDF of both up to 17 and 17 to 27 or 28. Now when roots are reciprocal, they are inverse of each other. We have seen now several times to alpha beta 1. According to formula of quadratic, alpha beta is nothing, c upon a equal to 1. That means c equal to a. If you compare this equation ax square plus bx plus c, then what is your c? It is k. And what is your a? It is 3. So what's your answer? Answer is 3. And what is the option? Option is A. Next question, number 18. Number 18, if the sum of the zeros of quadratic equation kx square plus 2x plus 3k, according to them, sum of the zero is equal to product of the zero. Product of the zero. We have to find k. Now, for that, sum of the zero means alpha plus beta, and product of the zero means alpha beta. That means minus b by a equal to c by a. Formula. What is minus b? So your minus b is minus 2. And what is your c? It is 3k. So your answer k equal to minus 2 by 3. ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, राइट. माइनस 2 by 3 किसमें है? ओके, ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19. If alpha and beta are the zeros, alpha beta are the zeros of polynomial x square plus 6x plus 2, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta. Very simple question this one too. What you need to do? LCM. LCM alpha beta. This does not have beta. This does not have alpha. Beta plus alpha or alpha plus beta, one in the same. It is minus b by a, and this is c by a. A cancel. What is b? Okay, minus 6. आपको sin b की लेने की. c is 2. So what's your answer? Minus 3. Let's see what's the option. Do you have minus 3? Okay, yes sir. We have got B. Next question is number 20. Alpha, beta, gamma are the zeros of x cube minus 6x square minus x plus 30. Then what you need to find out? Then you need to find out sum of the product of the root taken together. Sum of the product of the root taken together at a time. इसकी फॉर्मूला है आपकी c by a. c कौन है? Okay, 30. What is your a? Right? Okay, 1. सर आपका c नहीं है, ये d है. You mistaken. Okay sir. Minus 1 by 1. What's your answer? Minus 1. Look at that option. आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है? तो यस सर, वी हैव गॉट ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट निकल जाते हैं.
if alpha, beta and gamma are the zeros, right, of polynomial px such that alpha plus beta plus gamma, that is 3, alpha beta, beta gamma, gamma alpha is minus 10 and product of the root alpha beta gamma is minus 20. What you need to find out? पोलिनोमियल. तो चलो आपको फॉर्मूला आगे भी बताई थी, वापस से भी बता देते हैं. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यहां माइनस आएगा, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा के साथ एक्स, और यहां आएगा माइनस. सेकंड एंड लास्ट स्टेप माइनस. ये आपका पोलिनोमियल क्यूबिक का फॉर्मूला है. कीप इन योर माइंड. x cube remains x cube. This dimension then alpha plus beta, alpha beta, beta gamma, gamma alpha आपको दिया है -10 और वो दिया है -24, मतलब कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. योर आंसर x क्यूब माइनस 3x माइनस 10x प्लस 24. लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन है. माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज ऑप्शन सी. एंड हैव टाइम टू रब द बोर्ड. एक्चुअली ये 22 था, मैंने नंबर में थोड़ा गड़बड़ी कर ली है. ये 22 था, तो अब हम लोग देखेंगे 21. तो नाउ लेट अस सी 21. 22 ऑलरेडी वी हैव डन. गलती से ऊपर नीचे हो जाता है, राइट, हमारा चल जाता है और आपके मार्क्स कटते हैं. तो 21 में अगर आप देखेंगे, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस देन 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6. आपको फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा. एक्चुअली फॉर्मूला है -t/a, तो -6 बराबर. तो आपका आंसर आना है -3 और ऑप्शन है आपका ए. नाउ कम्स 23 बिकॉज वी हैव सीन 22 ऑलरेडी. नाउ क्वेश्चन 23. इफ टू ऑफ द zeros, if two of the zeros, ये बहुत सारे पेपर सेट में है, of ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d are 0, then third zero is dash. ये बहुत सारे पेपर सेट में है इनफैक्ट. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a. ये क्यूबिक का सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है. टू ऑफ द जीरोस आर 0, तो फिर आपका थर्ड जीरो क्या हुआ? ओके, आपका थर्ड जीरो हो गया -b/a. सर ऑप्शन बोल दो. ओके, -b/a, ऑप्शन ए अगेन. क्वेश्चन नंबर 24. If one of the zero, अब ये देखना, one of the zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, then product of, not third zero, product of other two zeros is dash. अब जब प्रोडक्ट है ना, तो आपके पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, जिसकी फॉर्मूला है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू c/a. मान लो लेट अल्फा एंड बीटा, इसमें से एक जीरो है, अल्फा जीरो है, वन ऑफ द जीरो, तो 0 इंटू बीटा, बीटा जीरो नहीं है, गामा जीरो नहीं है, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a. मतलब के 0 प्लस बीटा गामा प्लस 0 इक्वल टू c/a. ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू रूट्स. अल्फा 0 है तो अदर रूट,
तो आपका आंसर आ गया सी बाई ए। सी बाई ए का ऑप्शन कौन सा है यहां पे भी? तो क्या ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फैंटास्टिक क्वेश्चन, very good. 1 2 3 4 5. Already we have seen in earlier video, if one of the zero of x cube plus ax square plus bx plus c, यहाँ पे देखना अलग अलग है, is -1, we have already seen, then the product of the other two zeros is dash. Fantastic question. चलो ओके, वन ऑफ द जीरो आपका -1 है, तो p -1 लेके चेक करते हैं। a इंटू -1 स्क्वायर b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये सी हमको चाहिए, तो कि ये बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, वो सब उस तरफ गए ना। तो सर अभी आपने सी ही क्यों फाइंड किया, बी और ए क्यों नहीं? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अभी अभी हम लोग लाए सी बाई ए, राइट। वन ऑफ द जीरो ये है, देन प्रोडक्ट ऑफ तो के अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा आपका क्या है सी बाई ए। वन ऑफ द रूट आपका ये है बीटा गामा, गामा अल्फा ऐसा है, बराबर C अपॉन ए। या तो आप उसको दूसरी तरीके से ले सकते हैं, वेट, राइट। आपका C का आंसर आ गया है, राइट, बट वेट, हाँ बंद करो, ओके। सो अगर आपने देखा तो C का आंसर आ गया है, मैंने ऐसा बोला। अब देखो अदर टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो में एक आपके पास है और बाकी के नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, अल्फा है। और प्रोडक्ट ऑफ द अदर रूट जो हम लोग फाइंड करने जाने वाले हैं, यहां पे देखो ये इसको कंपेयर करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ, तो आपका d कौन है, c, a कौन है, a रहेगा 1, माइनस माइनस कट, तो बीटा गामा इक्वल टू आया सी, बट व्हाट इज सी? ओके सर, सी इज नथिंग बी माइनस ए प्लस 1। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में कई लोग गोख लेते हैं, क्रैम्प करते हैं, मगअप करते हैं, रिसाइट करते हैं कि जो सी आया वही आंसर, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 25, वी हैव ऑलरेडी सीन once or twice earlier on. Question 26 में देखो, if alpha beta zeros of 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, आपको फाइंड करना है कि, अगेन वेरी गुड सम वी हैव ऑलरेडी सीन। ये भी अगर आगे के वीडियो में देखेंगे 1 to 37 जो हमने किया था उसमें मिल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला बार बार सिखाई थी कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो 2 अल्फा बीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके बदले ये इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा
इक्वल टू 21/4। अब यहां से ये इक्वेशन ने माइनस बी बाई ए मतलब के -5/2 का होल स्क्वायर हुआ, अल्फा बीटा मतलब के c/2 हुआ, c/a सॉरी, दैट इज इक्वल टू 21/4। जरा ध्यान से इसको देख लो, ये 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस था तो माइनस। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आप देखेंगे तो 25 माइनस 21 4/4 इक्वल टू k/2, मतलब कि ये कैंसिल तो 1 और 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ध्यान से कैंसिलेशन देखते जाओ, के आपका आंसर आया 2। आंसर व्हाट इज द ऑप्शन? ओके सर, डी इज द ऑप्शन। As it is downward and some of you cannot able to understand alpha beta of this equation, right? तो हमने ये सम दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। हमको फाइंड करना है टी। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। तो उसके बदले हमने ये फॉर्मूला रखा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो वो माइनस अल्फा बीटा होगा। ये सी माइनस बी बाई ए है, ये सी बाई ए है, वैल्यू का रखी, इसको इस तरफ लाए उसको उस तरफ लाए, ये प्लस हो गया ये माइनस, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो एलसीएम 4 आया, 4 लिया, 25 माइनस 21 4/4 मतलब के 1 इक्वल टू, मतलब क्या करना ही समझ आए तो 1 इक्वल टू k/2, हेंस k इक्वल टू 2 इज द आंसर, राइट। अब दो ही बाकी बचे हैं, ओनली 2, and then it will be an end of this, end of। now 27, तो 27 देखो, 27 में क्या है, on dividing polynomial px by a non-zero polynomial qx, let get g of x, बराबर। ये क्वेश्चन है, इस बार उन लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा दिया है, और ये डिवाइजर है और rx रिमाइंडर है, पूरा चेंज कर दिया है। हाँ, तो px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। अब जरा ध्यान से देखो ऑप्शन क्या क्या है, Rx always 0, always। Number 2, degree of Rs less than degree of Gx, बराबर। Number C, either R of x equal to 0 or degree of R of x less than degree of g of x, and last one r of x equal to g of x। अब जरा ध्यान से देखो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 27 क्वेश्चन में आर एस अग्रवाल में एक करेक्शन है, यहां पे ये आपका g ऑफ x जो है बराबर वो डिवाइजर है और ये क्वेश्चन है, बराबर। अब ऑप्शन देखते हैं, राइट, ये आपका डिवाइजर है, उसमें गलत क्वेश्चन दिया है, टेक नोट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है। दैट मींस अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के लेफ्ट हैंड साइड पेज पे मैंने अंडरलाइन भी करवाया है, या तो आप डिवाइड करोगे jx से उसको, या तो rx आपको मिलेगा 0, या तो डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ, डिग्री लिखना जरूरी है, g ऑफ x, नॉट q ऑफ x। कभी कभार qx और उसकी डिग्री तो सेम भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गड़बड़ है, पोलिनोमियल qx के बदले आप लोग ऐसा लिखो gx, एंड क्वेश्चन में q ऑफ x ही लिखो। वेरी गुड क्वेश्चन, बट उन लोगों ने थोड़ी मैसअप कर दिया।
Last and final question 28. Last and final. Which of the following is a true statement? True statement. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे. ये देखो, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 ऐसा बोलते हैं इज अ लीनियर. तो कि सर ये लीनियर नहीं है, राइट, ये क्वाड्रेटिक है. नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज ए बाइनोमियल. आपको लगेगा कि सर ये राइट है, बट बाइनोमियल नहीं है. बाइनोमियल मतलब ओनली 2 स्टेप्स, तो ये भी गलत है. इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बराबर. बाइनोमियल मतलब 2 स्टेप हो तो बाइनोमियल, 1 स्टेप हो तो मोनोमियल, बराबर. नंबर सी देखो, x प्लस 1 इज अ मोनोमियल. ये भी गलत है. सर कैसे गलत है? लीनियर और मोनोमियल सेम नहीं है. 2 स्टेप हुआ, बराबर, तो अगर आप लोग देखो तो वो बाइनोमियल हुआ. 3 स्टेप हुआ तो ट्राइनोमियल हुआ. ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है. सर डी देखते हैं. 5x क्यूब इज ए मोनोमियल. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. दिस इज ट्रू. ये क्यूबिक है, बराबर, तो मोनोमियल मतलब 1 स्टेप, बाइनोमियल मतलब 2 स्टेप, राइट. ट्राइनोमियल मतलब के 3 स्टेप. ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक, ये हुआ आपका क्यूबिक, बट एक ही स्टेप होने की वजह से वो मोनोमियल है. तो ये ही स्टेटमेंट ट्रू है. ये भले लीनियर हो, लीनियर एंड मोनोमियल सेम नहीं होते. 2 स्टेप हो तो मोनोमियल बोलते हैं. That's how you must have learned something new, right? If you like, you can share and subscribe my channel and keep on watching this video. Thank you very much. Goodbye from Sanjay Purohit. Have a nice day.